Hello, everyone. Hello, audible? Hello, guys. Hello, hello. Am I audible, guys? Yes, you are audible, sir. Yes, sir. Assalamu alaikum, sir. Yes, you are वालेकुम audible. अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम हाउ आर यू ऑल कैसे हैं सब ठीक है Great, sir. How are you? आई एम गुड ऑलराइट I think there are certain people who are not yet joined. Let's just wait for 5 more minutes and we'll continue the meeting. Assalamu alaikum, sir. We are here, inshallah, and you are clearly audible to us. Thank you, thank you. All right, I think people have come. Some people have just joined right now. Okay, with them. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जुदा साहब, क्या हाल चाल है? ठीक है। शुक्र अल्लाह का सर सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, इधर नहीं आना, इधर नहीं आना अभी, इधर नहीं आना, इधर नहीं आना बेटा। Guys, we'll just wait 2 more minutes and then we will start because I think half of people have not yet joined. I don't know why some people are just joining WhatsApp groups as well. So, how Sure, was sir. your Take your experience? time. All right, thank you so much. How was your experience in our previous webinar that we held on 15th? And I would like to take some responses so that we can continue. We are waiting and so that, you know,
to kind of utilize this time. Anybody who joined previous webinar can share their insights. Assalamu alaikum, Sidra here. It was a great webinar indeed. I learned a lot about this particular software since qualitative research has always been like nightmare for me, especially to interrupt the data. But that webinar cleared my lot of questions, and I hope this workshop will, at the end of this workshop, I will do some more qualitative research work. Thank you so much for such a great initiative. Thank you so much, Sidra, and it's really nice to hear that you learned a lot of things. Obviously, that workshop was just a kind of question answer session, so we couldn't do practically what we wanted to do actually. What we actually need to do in qualitative research, and in this session and in this workshop, inshallah, we will be Yes, Assalamualaikum. having a lot of practical work. Walaikum salam. Who was this? I'm sorry, I couldn't see your name. Hello. All right. Amna says, Assalamu alaikum, sir. What is the link you have shared along with Zoom? That link is about downloading NVivo software, which we already shared in the webinar as well. But since some of you know, people around here are new and they couldn't join our previous session, so I shared the link for that as well, so that people could join and download, you know, NVivo software as well by their own. Because obviously, if you have it downloaded and if you have, um, particularly like if you want to learn how NVivo works, you obviously need to have that access to NVivo, and for that, obviously, I shared this link. Okay. Some people have joined with their, जी अस्सलाम device वालेकुम name. Walaikum salam, Aga. जी कैसे हैं आप ठीक हैं All good, all good. आप बताएं. जी जो लास्ट सेशन था जिनको हम प्रीवियस सेशन कहेंगे वो इट वाज अ नाइस सेशन क्योंकि वो उसमें काफ़ी अच्छा सा हम अच्छी सी हमारी डेवलपमेंट हुई थी रिगार्डिंग एंड वीवो बिकॉज हम तो न्यू थे कम्प्लीटली ब्लाइंड थे रिगार्डिंग दिस ऐप और सॉफ्टवेयर तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने हमें काफ़ी अच्छे वे से गाइड किया था हमारे जो बेसिक जो फाउंडेशन थी वो काफ़ी डेवलप हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह तो ये चीज़ों को कैसे वो उसमें लेके चलना है या कैसे डेटा इसमें इंटरप्रेट करनी है तो इंशाल्लाह आज भी हम आपसे काफ़ी कुछ सीखेंगे थैंक यू सो नाइस ऑफ यू Thank you, और thank you. एक गुजारिश थी Person, मैडम एक गुजारिश थी मैडम को आप कहें कि वो इंग्लिश तो कोई बात नहीं हर कोई बोल लेता है मगर उसको थोड़ा उर्दू में वो लेके चलें और थोड़ी स्लो स्पीड रखें ताकि वो ईच एंड एवरीथिंग क्लियर हो जाए इंग्लिश इज Uh, नॉट बिग डील मगर वो ट्रेनिंग है ना एक हैंड्स ऑन ट्रेनिंग मेरी एक मासूमाना रिक्वेस्ट है मैम को कहें थोड़ा उर्दू में वो चीज़ों को एक्सप्लेन करें all right, thank you क्योंकि so फेस टू much. फेस हम इंग्लिश बोल लेंगे समझ लेंगे यहाँ पे थोड़ी बहुत डिफिकल्टी हो रही है स्क्रीन मोबाइल की छोटी है दैट्स व्हाई All right, all right. Aga, actually, the problem is we have some international participants, and you might have seen in previous session that some people were writing, "So please, can you continue in English? And is this only Urdu session or what?" So that was one of the reasons that we actually kept it in English, and obviously we have. Uh, I think 4 or 5 international No problem. participants in If this we have a session. friend from abroad, then definitely we should go with English language. That's fine. We will survive with English language. Okay, sir. No problem. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. We have more than one. Like we have around 5 international participants. Some are from Qatar, some are from Bangladesh, some are from Nigeria, and one was from, I guess, Sweden or something. So people are coming from all over the world. Obviously, that is one of the core reason for
having these sessions online, so so that people can join from all over the world without any difficulties, and so that's the core. So I hope you understand. Okay, ma'am, can we please start the session with your introduction? As obviously some of people here are new, so just introduce yourself in a very subtle manner, and then we will start the session. So just one quick question before she Uh, starts. yes, Abra. Since I was not present and I think some of other participants were not there, you'll be starting from the scratch, or it's going to be something in continuation with the previous lecture? It'll this session will be the starting from the scratch, because obviously we have some new participants as well. So we will be starting from zero here. That session was basically the question answer session. There were a lot of people because it was free. So, हम पाकिस्तानियों को फ्री चीजें चाहिए होती हैं. So whenever we see free, तो फिर हम आ जाते हैं. So there were around 200 people joined that session. और आज का जो session है, these people are around 70. So like ये session हम शुरू से शुरू करेंगे from basics to the advanced level in these 3 days. Like आज का जो session है, this session is you know बेसिक्स इंट्रोडक्शंस एंड शुरू में चीज़ें कैसे करनी है सारी, डेटा इंपोर्ट कैसे करना है, डिफरेंट लाइक मैम इंशाल्लाह शेयर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टुडे सेशन. सो लेट्स not waste much time since we already have lost 15 minutes. So let's give it to ma'am, sir. Ma'am, it's on to you. Thank you. So, Assalamu alaikum everyone, and a very warm welcome everyone. Am I audible? Walaikum Yes, ma'am. salam, ma'am. Yes, You you are are audible. audible. All right. Yes, you are audible. Thank you, thank you. So thank you for joining the NVivo training workshop by Talimist. So basically, I'm really very excited to have researchers and faculty members and PhD scholars and professionals with us today. And before we begin, so let me briefly introduce the Talimist. Talimist is committed to empowering researchers and professionals by bridging the gap between theory and practice. So Talimist focus is always on hands-on learning and real-world application. So this basically workshop follows the same philosophy. So before we move forward, I'd love to know a little about you, since यहाँ पर new participants भी हैं जो पहले webinar में नहीं थे, तो please share your name, research area और आपका जो degree और professional role है. And also मुझे ये भी बताइएगा कि आप लोगों ने पहले NVivo use किया है या नहीं. So chat box में आप please मुझे बताओ. Islam, not used, PhD, never used. Mush has not used. Okay, Umar. No, ma'am. No use already. And Vivo, China, never used earlier. Okay. I've seen so many comments or messages ke they haven't used NVivo before. ठीक, so that's okay. और क्योंकि हम यहाँ पर स्क्रैच से ही हम स्टार्ट करेंगे, सो यू गेट टू नो एवरीथिंग अबाउट NVivo, लिटिल नॉलेज अबाउट NVivo. प्रेशर. ओके मोहम्मद, किसका म्यूट अनम्यूट है माइक? अच्छा हाँ, सादिया नॉट यूज्ड प्रेयर. ओके. ऑल राइट, सो मूविंग फॉरवर्ड. एक मिनट, क्या MPhil in politics HR. All right, Fiza, all right. So basically, my name is Sahar Akhtar Mughal, and I am a certified NVivo trainer.
a researcher and an academic professional. I have extensive experience in qualitative research design, thematic analysis, and computer-assisted qualitative data analysis. And I have trained researchers, faculty members, and PhD scholars, and my approach is very practical. I focus on helping researchers convert complex qualitative data into meaningful, research aligned insights. All right, so डे 1 की जो प्लानिंग है वो ये है कि हम फर्स्ट अपना इंट्रोडक्शन एंड डेटा प्रिपरेशन के बारे में बात कर लेते हैं। बेसिकली आपकी एक्सपेक्टेशंस एंड स्कोप क्या है वर्कशॉप का। 2 आवर्स की ड्यूरेशन है एंड आज हम जो है वो फोकस करेंगे मेनली ऑन अंडरस्टैंडिंग व्हाट NVivo is, creating NVivo projects, and importing and organizing data and writing memos and annotations. ठीक? So by the end of the day 1, participants will be able to understand what and why NVivo is and why it is used, interface of NVivo, and how we create the new project and exporting that project basically. And we will get familiar with the interface, or you can say the dashboard of the NVivo. ठीक हो गया? So अब हम NVivo के डैशबोर्ड्स पर हम जाते हैं। बिफोर दिस मुझे आप लोग बताओ कि क्या आपके पास NVivo इंस्टॉल हो चुका है। इफ नहीं तो आई कैन वेट फॉर 5 to 10 Yes, minutes। ma'am. हम I प्रैक्टिस के installed. साथ चलें तो हम ज़्यादा इजियर होगा। प्लीज़ मुझे आप लोग अपना आउटपुट दो थ्रू चैट। मैंने यहाँ पर डाउनलोडिंग लिंक भी शेयर किया हुआ है। वालेकुम सलाम। यस ऑडिबल। यस नो ट्राइंग। ओके आई कैन वेट। बुशरा जमील नो, जुबैर नो। मैंने यहाँ पर दिया हुआ है लिंक, आप वहाँ पर इंस्टॉल करो और आप अपनी जीमेल के थ्रू। Um, how about you guide the people, because some people might have all right, sure, yeah, we some can do this thing, yes. questions or something. ठीक है, Yeah, that will be easier for them. all right, yeah. मेरी स्क्रीन विजिबल है। ये जो मैंने बेसिकली लिंक सेंड किया है चैट बॉक्स में, ये वाला इंटरफेस आपके पास ओपन हो जाएगा। सो बाय क्लिकिंग ऑन स्टार्ट फ्री ट्रायल हम इस पे जाएंगे। तो इसके बाद हमारे पास एक मैम ये क्रैक वर्जन फाइल है या वो जस्ट ट्रायल बेसिस वाला है जो जिसमें 10 to 15 डेज हम यूज कर सकते हैं। थोड़ा इस पे गाइड करते हैं। बेटा ये जो है 14 डेज का ट्रायल वर्जन आपके पास होगा, क्योंकि इसका जो लाइसेंस की होती है बेसिकली ऑफिशियल, वो जो है यूनिवर्सिटीज एंड ऑर्गेनाइजेशन के पास होती है। ठीक है, अगर आप खुद भी परचेज करना चाहो तो आपको $130, एम आई राइट सर? इसका इतने का पड़ जाएगा आपको। ओके और मैम, Yeah, yeah. नोटेड। Yeah, it is the license of this NVivo software for students is $130, या and for professionals and other people it's even more expensive. एक्सपेंसिव या तो क्योंकि मैंने ऑलरेडी NVivo इंस्टॉल कर रखा है, तो आप जस्ट वहां पर स्टार्ट फ्री ट्रायल के बेसिस पर जाके और आप अपनी क्रेडेंशियल्स डालें। ठीक है, अपना ईमेल आईडी जो है जीमेल से इजीली लॉगिन आप कर सकते हो और आपका जीमेल पर ही जो है ना एक कोड जनरेट हो जाएगा एंड देन पुट तो ये पहले साइन अप करना पड़ेगा? जी डोंट हैव अकाउंट वाला ऑप्शन है ना। जी जी, जी वहां पर जाओ, आप ईमेल साइन पर। अप करें। हाँ जी,
एंड देन ईमेल आप अपना लिखो, या जीमेल का ऑप्शन वहां पर होगा दिया हुआ। आई आई वुड बी हैप्पी कि अगर जो जिनके पास एनवी वो अभी तक इंस्टॉल नहीं हुआ हुआ वो साथ साथ करते हैं तो उनको ज़्यादा इजियर होगा प्रैक्टिकल वर्क में। जी जी, इसहाक आप कर लो। एंड वेरिफिकेशन कोड। जी, जीमेल पर आ जाएगा। आमना, आपका वहां पर एक ऑप्शन होगा, इफ तो ऑलरेडी एनवी वो इंस्टॉल्ड है तो ये वाला आएगा, वरना डोंट हैव अकाउंट वाला आपके पास एक ऑप्शन आएगा। आई एम हैविंग एनवी ऑफ 14 रजिस्टर्ड वर्जन गिवन बाय यूनिवर्सिटी। दैट्स ग्रेट उमर। उसको जो मैंने लिंक को शेयर किया तो वो डायरेक्टली जो है वहां पे आ गया कि आप साइन इन करें एज अ गूगल या उसमें, हाँ तो वो हाँ हाँ मैंने की है और अब फिर एन वीवो को इंस्टॉल कर रही हूँ, तो उसके बाद ही ऑप्शन आएगा कौन सा वाला? कि जो है फ्री ट्रायल कि यस नहीं? यस यस, ऐसे ही है, ऐसे ही है। आमना, ठीक, यू फर्स्ट हैव टू लॉग इन द वेबसाइट, और फिर जी, यहाँ से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा जो स्क्रीन आपको शो हो रही है। ठीक ठीक है, है, वंस योर अकाउंट इज क्रिएटेड तो ये स्क्रीन शो होगी आपको। देन यू हैव टू सिलेक्ट फ्रॉम द प्रोडक्ट्स, ये वाला प्रोडक्ट आपको इन विवो डाउनलोड करना है। देन इट विल टेक सम टाइम टू डाउनलोड, ऑब्वियसली डिपेंडिंग ऑन द इंटरनेट कि आपकी स्पीड क्या आ राइट रही है सर, उसके। राइट। वंस यू हैव डाउनलोडेड इट एंड इंस्टॉल्ड इट, तो उसके बाद रनिंग के लिए यू विल नीड दी यू नो लाइसेंस की और ट्रायल वर्जन, तो वहां पे फिर आपको जो है वो होगा। आई राइट होप इट सर, इज क्लियर नाउ। यस सर। ग्रेट। पर जब स्टूडेंट्स जो है वो रिसर्च कर रहे होते हैं और वो जब एनालाइजिंग के स्टेप पर या चैप्टर पर आते हैं डेटा एनालाइजिंग के, तो आई गेस 14 या 15 डेज का ट्रायल वर्जन में बहुत ज़्यादा होता है इनके लिए। क्योंकि मैंने खुद ने जो है वो 5 डेज में अपनी एनालाइजिंग कंप्लीट करके और फिर मैंने आगे चैप्टर कर लिए थे मुकम्मल, तो ये हो जाती है, डोंट वरी अबाउट दिस थिंग। वंस आप लोगों का हो जाए तो प्लीज़ आप मुझे बता दीजिएगा सो दैट हम आगे इसको मूव करें एंड हम आगे चलें। ये एक जीमेल पे एक वर्जन ही चलेगा, मीन्स हम्म, एक जीमेल पे एक ही दफ़ा चलेगा ये जी जी ट्रायल वर्जन? जी 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 बिल्कुल, क्योंकि एन वी वो बेसिकली वर्क ही ऐसे करता है कि आपके जो जीमेल के क्रेडेंशियल्स हैं ना, आप उसे फिर से आप इंस्टॉल करोगे ना तो अगेन वो आपको जीमेल पर ही ले जाएगा बाय डिफॉल्ट, तो या एक ही बार ओके। कर। जी जी। Aga, there is this issue as well, like once you have this downloaded और एक बार आपने अपने लैपटॉप से यूज कर लिया एक ही विंडो के जी ऊपर, जी। तो देन यू विल हैव टू रीइंस्टॉल द विंडो टू यूज, मतलब अगर दूसरी ईमेल से आप करना चाह रहे हैं इसको यूज फ्री ट्रायल को और पैसे नहीं भरना चाह रहे तो दोबारा विंडो करना पड़ेगी आपको। चलें, सही है सर। देखते हैं पाकिस्तान एक ग्रेक वर्जन मिल जाए कहाँ से तो वेल एंड गुड। देखता हूँ मैं खुद। Yeah, that would be ओके। अगर आपको मिला ना पाकिस्तान क्रैक वर्जन तो वो फिर ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में भी प्लीज शेयर कर दीजिएगा। या जी जी, प्लीज श्योर इंशाल्लाह आगा, जी जरूर। जैसे ही आपको मिले आप हमें प्लीज सबके साथ शेयर कर दें। नहीं जी, थोड़ी चार्जेस तो लूंगा, जाहिर सी बात है, इतनी एफर्ट्स लगाऊंगा, कंप्यूटर के लोगों को रिक्वेस्ट आगा, करनी पड़ेगी। आई हैव करेक्ट वर्जन, बट वो पुराना वाला वर्जन है, लाइक इट्स 12 आई थिंक। नाउ इट्स सो 15 years सर वो बेसिकली। फिर तो काम नहीं होगा, जाहिर सी बात है, लेटेस्ट फीचर्स तो नो, उसमें अपडेट लिसन नहीं आगा, होते लिसन लिसन आगा, करेक्ट लिसन वर्जन में। लिसन 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 जो मैंने अपनी रिसर्च की थी ना बेसिकली,
12 पे ही की थी, एंड 12 इज लाइक बहुत ज्यादा यूजर फ्रेंडली, जिसे हम इंटरफेस कहते हैं, यूआई बहुत उसका अच्छी है। लेकिन थोड़ा फिर भी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो अगर 12 पर भी आप वर्क कर रहे हो तो वो भी बहुत अच्छा है। ओके मैम। ओके उमर। मैम आपने पीएचडी कहाँ से की है, पाकिस्तान से या बाहर से? आपने मैंने बताया नहीं। मैंने आपको लास्ट में बताया था, मैंने मास्टर्स की हुई है जेबस से। ओके मैम। अच्छा हो गया है तो हम आगे चलें। वो नहीं हो यस रहा, वो यस तो वो श्योर कह रहा है मैम। कि उसको जो है इंस्टॉल करने के लिए रीस्टार्ट करने का, रिबूट करने का ऑप्शन आ गया। रिबूट का ऑप्शन? लाइक लैपटॉप रिबूट करने का ऑप्शन? जी। नहीं। ऑलराइट उमर, ऑलराइट। ये कि कौन था, प्लीज आप मुझे अपना नाम बताइएगा। जी, आमना बात करूँ। आमना जी, क्या आप प्लीज उसे रीड आउट कीजिएगा, क्या ऑप्शन है वहां पर, क्या शो कर रहा है? जब डाउनलोड हो गया ना, तो मैं उसको इंस्टॉल कर रही थी अपने विंडोज के ऊपर। तो हम्म। वो कह रहे कि विंडो जो है उसको रिबूट करें, क्योंकि इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको जो है इसको अच्छा अच्छा, करना, ये रीस्टार्ट बात करना। सुनो। मे बी इट इज पॉसिबिलिटी कि आपका जो विंडो है ना वो या तो 64 बिट्स का नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए भी एक विंडोज एक अलग से चाहिए होता है, तो फिर ही इंस्टॉल होता है, तो शायद आपकी स्पेसिफिकेशंस का वो मसला होगा। वरना आई एम होपिंग कि यहाँ पर मेजॉरिटी का इंस्टॉल हो चुका है एनवीवो। मेरे ख्याल से इशू आ रहा है आपके पास रीबूटिंग का लेट इशू। मी चेक इट अगेन। या श्योर। मैम देखिएगा मैं विजिबल हूँ एन वीवो पे। बेटा मुझे इस तरह नहीं शो होगा कि एनवीवो पे आप विजिबल हैं या नहीं। ये ये सेटिंग देख। स्क्रीन तो खुली हुई है मेरे, तो वो इंस्टॉल किया था। नहीं, शो नहीं हो रहा। मैम वो एक गुजारिश थी, लास्ट टाइम आपने पीपीटी शेयर नहीं की थी हमसे ऑन व्हाट्सएप ग्रुप, तो इस दफ़ा आपको रिक्वेस्ट है ये आप पीपीटी और प्रीवियसली भी आप हमें वो शेयर कीजिएगा, ताकि श्योर। हम भी थोड़े बहुत अच्छे वो सीखें। मैंने। अच्छा, एक बात बताइए, जी जी। आपने इसको इतना डिफिकल्ट क्यों किया हुआ? मतलब किसी इजी वे में नहीं हो सकता था, जो हमारे जैसे नए लोग हैं? बेटा डिफिकल्ट वे नहीं है, ये सबसे सिंपल वे है, और आपको जस्ट क्लिक एंड डाउनलोड करना है विद गूगल क्रेडेंशियल्स। ठीक है, मैंने कोई इसको डिफिकल्ट नहीं किया हुआ, ये ऐसे ही इंस्टॉल अब हो मुझे जाएगा। एक स्क्रीन जो नजर आ रही है वो यही है कि वो ये तो मैंने एक्सेल आपको, स्टेट। वो तो वो Okay, उसमें। okay, okay, okay. Excuse, ma'am, if I may answer them. Like, जी the जी। scene is, we are not showing how to download it. We are just providing you verbal guidance. This screen should appear once you, register to Lumiviro rather, right? When you see this screen, you have to go to products, which I believe you can see that in the all products section at the right side of your laptop. तो वहाँ पे इन वीवो का ऑप्शन है, वहाँ जाएंगे, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो इट विल गिव यू द डाउनलोड लिंक। वहाँ से डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के बाद यू विल हैव टू रन इट इन योर ओन लैपटॉप। जाहिर है भी हमारे पास ऑलरेडी मैम के पास इंस्टॉल्ड है, तो वो दोबारा प्रोसेस नहीं होगा। गेटिंग माई पॉइंट बेटा? आई होप इट इज क्लियर नाउ। ओके, मैं हटा देती हूँ, आई गेस ये डिफिकल्टी शो कर रहा है, तो इट्स ओके। एंड आगा मैंने जो है वो शेयर कर दी थी स्लाइड्स, मैं फिर से भी शेयर कर दूंगी ग्रुप पर, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। आई हैव अ क्वेश्चन, लाइक मैंने लास्ट टाइम डाउनलोड किया था और उसका ट्रायल पीरियड एंड हो चुका है, तो वो अब दोबारा वर्क करेगा लाइक? ओके मैम। हाँ। आप अगर एक और अगर जीमेल आईडी बना देते हो तो आई गेस वर्क कर जाएगा, या आपको दूसरा लैपटॉप यूज करना पड़ेगा शायद। ये कौन था वैसे, प्लीज आप अपना नाम मेंशन मोहम्मद कीजिएगा। मोहम्मद इस्माइल। मोहम्मद इस्माइल। ठीक है मोहम्मद इस्माइल, आपने सेम लैपटॉप पर ही किया था इंस्टॉल? ये इंस्टॉल तो हो जाएगा, कोई जुगाड़ लगा लें, मतलब फाइल को आगे पीछे कर लें, हो जाएगा इजीली। स्माइल, एज आई टोल्ड आगा कि अगर आपने वंस यूज कर लिया है इसका फ्री वर्जन, तो फिर आप इसको दोबारा दूसरे आईडी से लॉग इन करेंगे, और विंडोज इन केस अगर आपके पास एक ही लैपटॉप है तो विंडोज दोबारा करना पड़ेगा, क्योंकि विंडोज के साथ एक आईपी एड्रेस बनता है आपका।
तो वो आईपी एड्रेस चला जाता है एनवीवो के डेटाबेस के अंदर कि यू हैव यूज्ड फ्री वर्जन। ओके सर, नोटेड। यस। ओके ओके। इंस्टॉल्ड, ओके, ग्रेट ग्रेट। स्क्रीन ऑफ सॉफ्टवेयर आती है, अभी आती है स्क्रीन ऑफ सॉफ्टवेयर। ओके, ग्रेट। ओके, एडी न्यू प्रोजेक्ट। ओके, मेरा आपका हो गया है इंस्टॉल। Now हो गया इंस्टॉल। हुमेरा इज सेइंग कि स्क्रीन ऑफ सॉफ्टवेयर, यस दिस इज द डैशबोर्ड ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड वीवो, इस तरह आएगा इंस्टॉल के बाद आपका, इस तरह से आएगा या डाउनलोडिंग। ओके ओके फकीर, आई कैन वेट लाइक। कीप कपल ऑफ मोर मिनट्स, इट्स ओके, इट्स ओके, वी आर हियर फॉर यू पीपल। अगर ये आपके पास होगा तो इट विल बी इजियर फॉर यू। Yes, Janzib, you want to say something? All right. All right, Nargis, all right. Okay, there is this participant 929816. Can you please rename ये जो yourself स्क्रीन with the शेयर real की name? हुई है तो इसी पे चलेगा, ये जो नजर आ रहा है जिसमें एक मेल और फीमेल नजर आ रहे हैं। आप बेसिक करें, Yes, yes, this is इंस्टॉलेशन करके करेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा, सारी रात लग जाएगी। आप हमें थोड़ा आगे लेके चलें ताकि थोड़ी वो टर्निंग तो हो ना। इंस्टॉलेशन हम घर कोई बाद में भी कर सकते हैं। कुछ okay. बच्चों का Okay. डाउनलोडिंग पे है ऑलरेडी और कुछ का इंस्टॉल हो गया, तो वी आर वेटिंग फॉर लाइक 5:40 तक हम स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, नो वरीज, हम साथ साथ चलते हैं यहाँ पे। ओके Okay. ओके मैम, नोटेड। All right. Can you please guys give me a moment? Like there is this participant 92829816. ये kindly please अपना नाम लिख लेंगे यहाँ पे गूगल अपनी मीटिंग पार्टिसिपेंट्स में जाके वहाँ पे आप इसी नाम के आगे अपना नाम लिखें। थैंक यू। 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे तो रीनेम का ऑप्शन आ जाता है। Please rename yourself, otherwise, we unfortunately will have to remove you from the meeting because we do not know who you are and what's your name. So I hope you understand. Hello, sir. Hello. हेलो 929816. Can you hear me, please? Right, maybe he's renaming himself in meeting. See, this is really a norm. Like we obviously have names for the identity, right? तो हम अपने और यहाँ पे obviously this is a paid workshop and we are like we only allow people who have registered for it and we do not know whether you have registered or not. तो ज़ाहिर है, we really appreciate if you please rename yourself. Thank you. Ma'am, yes, please, you can continue. All right, okay. Yeah. So moving forward, so now that we are conceptually clear about NVivo, basically मैं आपको NVivo बता भी देती हूँ कि NVivo होता क्या है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे आप लोग ये बताओ कि what challenges do you face when working with qualitative data? या अगर कोई फर्स्ट टाइम क्वालिटेटिव वर्क डेटा के साथ वर्क कर रहा है तो प्लीज आप मुझे उसके बारे में भी बताओ थ्रू चैट बॉक्स ऑफ कोर्स। हेलो, कोडिंग, ओके है ना, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन टू कोड अ डेटा। एंड मुझे ये भी बताओ प्लीज कि आप लोगों ने, ओके इंटरप्रिटेशन, ओके ऑल राइट या कोडिंग, ओके ठीक ठीक। एनालिसिस, ओके। How to develop themes from codes. All right, here's the use of themes and sub-themes to analyze the data.
ओके हम्म ठीक so everything you just mentioned is exactly why NVivo exists and now and like एक मैं आपको बात बता दूं NVivo doesn't replace your thinking it's just strengthens it ठीक so NVivo basically है क्या NVivo is a computer assisted qualitative data analysis tool software also known as CAQDAS computer assisted qualitative data analysis software ठीक है NVivo does not just analyze a data for you instead it helps you organize code explore and visualize qualitative data in a systematic way ठीक अब NVivo बेसिकली टूल क्या है हमें पता चल गया कि एक क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस का टूल है शफक कैन यू प्लीज या थैंक यू सो क्वालिटेटिव डेटा होता क्या है बेसिकली क्वालिटेटिव डेटा होता है कि जो आपके सर्वेस हों जो आपके वर्ड्स चला गया कैन यू प्लीज म्यूट योरसेल्फ या थैंक यू वेरी मच सो all Aga, I right think your mic is on mute. Aga, please mute your. ओके सो आपका क्वालिटेटिव डेटा होता क्या है क्वालिटेटिव डेटा आपका होते हैं सर्वेस आपके सोशल मीडिया का डेटा हो गया आपके इंटरव्यूज हो गए जहां पर बेसिकली नंबर्स ना हो ठीक हो गया आपके एक्सपीरियंसेस आपकी ऑडियो फाइल्स आपकी वीडियो फाइल्स आपकी इमेजेस आपका सोशल मीडिया का डेटा फॉर एग्जांपल ट्विटर का डेटा ट्विटर जो एक्स हम से कहते हैं फेसबुक का डेटा तो वो सब उनको बेसिकली पैटर्न देना उनको थीम देना उनको इंसाइट देना जो है वो NVivo का काम होता है ठीक है और NVivo हम बेसिकली यूज क्यों करते हैं और ये NVivo का बेसिकली बेनिफिट होता क्या है NVivo बेसिकली हम तब यूज करते हैं जब आपके पास लार्ज अमाउंट्स की क्वालिटेटिव डेटा फाइल्स हों qualitative data files I'm saying qualitative not quantitative qualitative data files हों एंड आप उनको ऑर्गेनाइज या कोड एंड साथ में आप विजुलाइज भी करें सिस्टमेटिकली लेट मी क्लेरिफाई अ थिंग हेयर फॉर यू participants के NVivo does not think for you because it is not AI it is basically a software NVivo does not generate themes automatically and also NVivo does not replace the researcher. What NVivo does is improve the organization of your what we can say ke meanings or data. Also, NVivo maintain the audit trail and support the transparency in analysis. हम ये नहीं कह सकते कि हमने ये अपनी खुद की जो है रिसर्च की है और हमने कोई टूल वगैरह नहीं यूज किया और हमने कोई सपोर्ट भी नहीं ली हम बेसिकली NVivo एक हम उसे कहते हैं ब्राउन एंड क्लर्क की स्ट्रेटजी कहते हैं NVivo बेसिकली बेस्ड ही उस पर करता है बेसिकली आप अपना उनकी स्ट्रेटजी ये होती है कि आप अपने पहले डेटा से फेमिलियराइज होते हैं देन उनको कोड करते हैं एंड इनसाइट्स एंड मीनिंगफुल्स होते हैं यहाँ पर मैंने लोगों का देखा था पार्टिसिपेंट्स का कि उनके क्वेश्चंस थे कि उनको प्रॉब्लम होती है इंटरप्रिटेशन में भी कोडिंग तो बिल्कुल एक डिफिकल्ट थिंग है बट मैं आपको सिखाऊंगी तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा बट इंटरप्रिटेशन का भी उनका इश्यू होता है सो हम आगे चलते हैं ठीक तो पार्टिसिपेंट्स
मैं आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोग यहाँ पर हैं and हम अब न्यू वेरी फर्स्ट प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं. सो बाय क्लिकिंग ऑन न्यू प्रोजेक्ट, सॉरी, सो या प्रोजेक्ट टाइटल हम दे सकते हैं इसको माय रिसर्च या माय प्रोजेक्ट भी हम एक टाइटल दे सकते हैं. ठीक. और यहाँ पर जो है, let me installed successfully. Okay, link for NVivo software. Can you please share the link? मैंने यहाँ पर किया था लिंक शेयर, तो आप प्लीज एनीवन पार्टिसिपेंट कॉपी पेस्ट कर दो यहाँ पर लिंक. I shall be thankful to you guys. And okay, thank you. Yeah. Add. Thank you, Masood. थैंक यू नरगिस, थैंक यू. यहाँ तक आप आ जाओ तो हम आगे चलते हैं. ठीक है, हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, प्रैक्टिकली हम चलते हैं आगे. ठीक. थैंक यू. Guys, it is suggested that please follow ma'am how she goes about this software so that you can practically have the experience of using it. मैम इसको आगे प्रोसीड करें काइंडली. Yes, ma'am, please proceed. Continue. ma'am. ऑल राइट. ठीक है, तो हमने अपना यहाँ प्रोजेक्ट टाइटल दिया है. हम जो हैं अपना यहाँ पर ये कहते हैं कि फाइल नेम आप रखो. मैंने फॉर डेटा डेस्कटॉप पे ही रखा है. अगर आप डिस्क्रिप्शन देना चाहें तो हम डिस्क्रिप्शन दे देते हैं. हाउएवर हम डिफॉल्ट सेटिंग के साथ ही आगे चलेंगे. ठीक. यहाँ पर हम नेक्स्ट करेंगे. यहाँ पर हमें ये पूछता है कि डिस्प्ले सेव रिमाइंडर्स एवरी 15 मिनट्स एंड आपका अपना. ओके, या आपका अपना ऑटो सेव हो जाए प्रोजेक्ट. इफ यस एंड अनडू डिस्प्ले. तो बेसिकली हम अपने जो है बाय डिफॉल्ट सेटिंग जो एन वीवो की है हम उन्हीं के साथ प्रोसीड करेंगे. सो हम अपना एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेंगे. दिस विल टेक अ फ्यू टाइम. ठीक, प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा. ऑल राइट. सो यहाँ पर हमारा एक डैशबोर्ड आ गया है और ये कहता है कि आपको हम पर इसका स्किप करेंगे एंड यहाँ पर आप एक आपके पास जो है एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फेमिलराइज होते हैं जान से. यस आई नो जान से. ओके, या ठीक है. ठीक, ये हमारे पास एन वीवो का डैशबोर्ड है. ठीक. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले एन वीवो के डैशबोर्ड को हम समझते हैं कि ये जो हॉरिजॉन्टल टूल्स हैं ये क्या चीज़ हैं, ये हमारे पास जो वर्टिकल टूल्स हैं ये हमारे पास क्या चीज़ है. ठीक हो गया. ओके. तो थिंक ऑफ दिस हॉरिजॉन्टल टूल्स एज द कमांड सेंटर. हॉरिजॉन्टल दिस थिंग, दिस ऊपर वाली थिंग जो है ना, कमांड सेंटर. कमांड सेंटर मतलब कि व्हाट यू कैन डू इन एन वीवो. और हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि एन वीवो आपको ऑफर क्या करता है. ठीक. एक 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 रिसर्चर को ऑफर क्या करता है, ये कमांड टूल ऊपर हमारे पास है जिसमें हमारे पास आते हैं. जैसे मैंने एक मिनट. इसका माइक अनम्यूट हुआ हुआ है, प्लीज आप म्यूट कीजिए.
इट्स डॉक्टर शाहिद। हम्म शाहिद भाई अपना माइक ऑफ कर लो, मुश्किल हो गई। हाथी आप भी अपना कर लो। ओके। सो यहाँ पर जो है हमारे पास, एक मिनट में, ये स्लो चल रहा है काफी ज्यादा। ओके। थिंक एज अ वर्टिकल टूल हमारे पास जो है, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर जो वर्टिकल टूल्स दिए हुए हैं, वर्टिकल टूल ये है कि एज योर टूल बॉक्स, आप अपने कोड्स, अपने केसेस, जहां पर आपके मेमोस वगैरह स्टोर्ड होंगे, आप एन वीवो के साथ, डेटा फाइल्स के साथ आप क्या कर सकते हो। सी ऊपर जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो ये है कि एन वीवो आपको ऑफर क्या करता है। लेफ्ट हैंड साइड पे जो वर्टिकल टूल्स हैं, आप अपने डेटा फाइल्स के साथ क्या कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारे पास फाइल्स हैं, इंपोर्ट डेटा है फॉर एग्जांपल, ठीक है, क्रिएट है हमारे पास, जो कि हम एडवांस बेसिकली हम बेसिक्स टू एडवांस लेवल पर जा रहे हैं, तो हम इनको इसी तरह लेकर चलेंगे। एक मिनट, कहाँ गया ये? ठीक है। एक्सप्लोर हमारे पास है, जहाँ पर हमारे पास विजुअलाइजेशन भी आते हैं, चार्ट्स एंड हायरार्की, एंड फिर वर्ड फ्रिक्वेंसी भी हमारे पास आते हैं। हमारे पास शेयर के भी ऑप्शंस हैं, हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हमारे पास मॉड्यूल्स भी हैं। लास्ट लास्ट जो हमारा एक वेबिनार हुआ था, उसमें ये था कि ट्रांसक्रिप्शन जो है पार्टिसिपेंट्स ने सीखनी थी। ट्रांसक्रिप्शन के लिए अलग भी टूल्स होते हैं, जैसे हमारे पास टर्बो स्क्राइब हो गया, पर एन वीवो खुद भी जो है ट्रांसक्रिप्ट का ऑप्शन देता है। ठीक है, अगेन इट इज़ रियली वेरी एडवांस लेवल, पर मेरी मेरी सजेशन है, मेरी प्रैक्टिस लेवल ये होती है कि टर्बो स्क्राइब आप लोग यूज़ करें, and आप लोग जो है अपना ऑडियो फाइल्स या वीडियो फाइल्स आप अपने ट्रांसक्रिप्ट कर सकते हैं। सो यहाँ तक क्लियर है। सो हम आगे जो है मूव करेंगे फाइल्स एक्सपोर्टिंग पर। क्लियर है यहाँ तक? प्लीज आप मुझे मैसेजेस के थ्रू बताओ। जी बुशरा। Unmute yourself and ask the question. Yes, it's clear. It's clear. It's clear. Okay. Okay, clear. Excuse me, ma'am. I have a जी। question for you. हम्म। Ma'am, can you please name the transcribing tool like अभी आपने बोला था? I just TURBO, टर्बो स्क्राइब बेसिकली नाम है। अच्छा, okay. BOSCRIBE। ओके। अच्छा, Ma'am, यहाँ पर is this tool is free or like we it's paid? इट्स फ्री, It's टोटली फ्री। free. Okay. ठीक Thank है। you so. I hope it's not AI नो नो नो, supported tool. इट्स Okay. नॉट एआई सपोर्टेड। या Thank you. जहाँ तक Thank you. मैंने काम किया था अपने रिसर्च पेपर में, तो बैक देन इट वाज नॉट एआई सपोर्टेड, बट आप अभी अपना चेक कीजिएगा, ठीक है। तो एंड इट इज नॉट एआई सपोर्टेड, क्योंकि आपको खुद ही जो है वो करके देगा। चलें, ठीक है. Thank you so much. ओके ओके, नो वरीज। तो हम आगे चलते हैं। ऑलराइट, थैंक यू मेरा। अच्छा, ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे आपके आपके पास टूल बॉक्स है, तो हमारे पास यहाँ पर आता है फाइल्स क्लासिफिकेशंस, एक्सटर्नल्स, बेसिकली ये सारी फाइल्स का यहाँ पर हम अभी काम करेंगे। पर लेट मी टेल यू गाइस कि हम पहले इसको डैशबोर्ड को समझ लेते हैं, उसके बाद हम जो है फाइल एक्सपोर्टिंग की तरफ चलेंगे। कोडिंग है हमारे पास आते हैं केसेस, जिसको हम पार्टिसिपेंट्स कहते हैं, एंड हमारे पास यहाँ पर एट्रीब्यूट्स भी आते हैं, देन हमारे पास हैं नोट्स एंड मेमोज, सब कुछ ठीक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं फाइल्स एक्सपोर्टिंग की तरफ। ओके।
ठीक, फाइल्स एक्सपोर्टिंग की तरफ हम चलते हैं। सो बाय क्लिकिंग राइट क्लिक हम करेंगे फाइल्स पे, हम न्यू फोल्डर पर जब हम क्लिक करेंगे तो हम एक नाम देंगे फाइल और फोल्डर नेम। मैं देती हूँ नाम इंटरव्यूज का। ठीक, आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो, पर मैं बाय डिफॉल्ट सेटिंग के साथ ही आगे चल रही हूँ। सो इंटरव्यूज हम ओके कर देंगे। सो मीनवाइल यहाँ पर एक फाइल क्रिएट हो जाएगी यहाँ पर इंटरव्यूज की, ये आप लोग देख सकते हो। ठीक, हम फाइल इंटरव्यूज पे जब हम क्लिक करेंगे, एक मिनट ये थोड़ा लोड हो रहा है। हम इंटरव्यूज पे क्लिक करेंगे तो एक न्यू हमारे पास इंटरफेस ओपन हो जाएगा। जस्ट अ मिनट, ये स्लो चल रहा है। मोहम्मद जवाद, फर्स्ट डैशबोर्ड प्लीज। डैशबोर्ड पे क्या क्या समझ नहीं आ रहा, प्लीज आप पूछो। तो मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इट मैम इज इट आपके इज। मैम आपके बात क्लियर है। मैं आप ही को फॉलो कर रहा हूँ। ये मेरा मैसेज था जो सिग्नल की वजह से लेट मिला है आपको, कि आपने पूछा था ना कि डैशबोर्ड क्लियर करने जाना, डैशबोर्ड पर बात। जी जी। इट विल बी फास्ट सेशन। ये मुझे थैंक्स मैम। ओके। जी इशफाक, इट इज वेरी वेरी स्लो। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास एक इंटरव्यूज का डैशबोर्ड हमारे पास ओपन अप हो गया है। ठीक, पर अभी हमने इसमें कुछ भी हमने हमने इसमें कोई भी डेटा हमने इंसर्ट नहीं किया। तो हम अब क्या करेंगे, मेरे पास एक डेटा रखा हुआ है डेस्कटॉप पर। ठीक, मेरे पास एक डेटा रखा हुआ है डेस्कटॉप पर, जो कि मैंने डेस्कटॉप से लाना है। एक मिनट, कहाँ है डेस्कटॉप मेरा, ये रहा। डेस्कटॉप से लाना है तो डेटा सेट्स, डेटा सेट्स में मेरे पास जो है वो, इज दिस विजिबल ना? मेरे पास 3 डॉक्यूमेंट्स की फाइल्स हैं। ठीक है, हम यस मैम तीन Yes, ma'am, it's visible. ओके ओके। मैं बेसिकली यहाँ पर एक, अच्छा बेसिकली डेटा इंपोर्टिंग के जो है ना हमारे पास 2 से 3 मेथड्स होते हैं एनवीवो में। तो मैं वो सारे आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ। सो दिस इज व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। हम सिंपली ये 3 इंटरव्यूज को ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम यहाँ ले आएंगे। बहुत ही ज्यादा स्लो चल रहा है। ये तीनों इंटरव्यूज जो है थ्रू ड्रैग एंड ड्रॉप के प्रोसेस के थ्रू हमारे पास यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएंगी। कैन यू प्लीज शेयर दीज डेटा सेट विद हस प्रैक्टिस? ऑल राइट हिजर, ऑल राइट, मैं करती हूँ। कैन यू सी हियर कि अली हसन सारा का जो इंटरव्यू है, जो डेटा फाइल्स हैं वो यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप हो गई हैं। और यहाँ पर ये फर्स्ट मेथड जो है डेटा इंपोर्टिंग का, वो हमारा सक्सेसफुली हो चुका है। ठीक, मैं यहाँ पर जूम पर चैट बॉक्स में ही आपको तीनों फाइल अ, अभी शेयर कर रही हूँ। ठीक है, और आप यहाँ से डाउनलोड कर लो फाइल्स को। और मैं यहाँ पर फिर थोड़ी देर स्टॉप हो रही हूँ, सो दैट आप लोग इसको, इस सारे प्रोसीजर को फॉलो करो और मुझे बता दीजिएगा कि फाइल्स आ चुकी हैं या नहीं। ओके, डेस्कटॉप डेटा सेट्स एंड अली हसन सारा। ओके, ओपन। ये देखो आ चुकी हैं फाइल्स। मैं कर देती हूँ फरिया, मैं कर देती हूँ रिपीट। बस ये यहाँ पर आप
डाउनलोड कर लो फाइल, तो मैं ये फिर से जो है प्रोसीजर जो है रिपीट कर लेती हूँ। ओके, आप ये डाउनलोड करके मुझे बताओ तो हम फिर से इसको करते हैं। यस, डाउनलोडेड डन सिद्रा बानो। ओके ओके। अच्छा, आप मुझे अब ये वाला जो प्रोसीजर मैंने अभी किया है ड्रैग एंड ड्रॉप का, फाइल्स में जाके फोल्डर से क्रिएट करना है। आप यहाँ तक समझ आ चुका है तो प्लीज आप लोग ये स्टेप फॉलो करो, और फिर हम एक और डेटा एक्सपोर्ट का वे सीखते हैं। ओके, यस, रिपीट कर दें। ठीक है आमना। Can you repeat this step, drag and drop? ओके ओके, मैं कर देती हूँ, ठीक है या ओके। हम शुरू से करते हैं। मैं ये इंटरव्यूज का जो फोल्डर है वो इसको डिलीट कर देती हूँ। हम शुरू से करते हैं। सिंपली हमारे पास एक इंटरफेस आ गया था, ये थोड़ा टाइम लेगा पर ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास ये इंटरव्यूज का जो फोल्डर था वो डिलीट हो चुका है। अब हमने क्या करना है, बाय क्लिकिंग आई हैव जस्ट ज्वाइन द मीटिंग, नाउ कैन आई गेट द रिकॉर्डेड सेशन? आलिया, यू विल गेट दिस रिकॉर्डेड सेशन। ओके, बाय क्लिकिंग ऑन द राइट बटन, न्यू फोल्डर को हमने क्लिक करना है, एंड हमने आप अपनी मर्जी से नाम दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं नाम दे देती हूँ इंटरव्यूज का। ठीक, इंटरव्यूज, एंड बाय क्लिकिंग ऑन ओके हमारे पास एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा इंटरव्यूज के नाम से। ये रहा। हम इस चीज को, फाइल्स को क्लोज कर देंगे, और ये हमारे पास इंटरव्यूज का एक फोल्डर क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अब जहां पर आप लोगों ने डाउनलोड की गई हैं फाइल्स, आपकी चांसेस आर कि वो डाउनलोडेड फोल्डर में गई हूँ। आप उनको डेस्कटॉप पर ले आओ फॉर एग्जांपल, या डाउनलोड फोल्डर में ही रखो सो दैट आप कंफ्यूज ना हो। डेस्कटॉप पर ले आओ। तो बेसिकली आपको करना क्या है कि बाय क्लिकिंग ऑन अली एंड कंट्रोल, ये आपको तीनों इंटरव्यूज जो हैं वो आपको क्लिक करके जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करने हैं। यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप हो जाएंगे। आप देखो यहाँ पर नीचे हो रहे हैं, ये देखो हो गए हैं। ठीक, यहाँ तक। ऑल राइट पार्टिसिपेंट्स, ओके सिस्टर, आई नीड मोर मैसेजेस सो दैट हम आगे चल सकें। हम्म, okay, yeah, okay, Fariha, okay. So moving towards another, I have shared these data sets in the WhatsApp group. Okay, please mic off कर दें। जी सिद्रा, मैंने कर दिया है। उनका mic off. It's not. Repeat again. Do I have to? Okay, हम एक another वे पर चलते हैं डेटा एक्सपोर्टिंग के। बाय क्लिकिंग ऑन इंपोर्ट, अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर मेरा जो डेटा सेट्स का एक फाइल रखा है, वहां पर एक एक्सेल का डेटा है, तीन मेरे पास वर्ड डॉक के फाइल्स हैं, एक मेरे पास पीडीएफ फॉर्म में फाइल है। सही है, डिफरेंट फाइल्स है मेरे पास। तो करना क्या है हमने, बाय Excuse क्लिकिंग, me, ma'am. Sorry to interrupt. Kind जी बोले बोले, कहाँ गया? They have muted my.
ओके। राइट, आप कंटिन्यू करें मैम, दे हैव जी म्यूटेड जी देयर सेल्व्स। ओके। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब हम इंपोर्ट और फाइल्स में जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक्सेल का फाइल शो ही नहीं हो रहा। तो हमने करना क्या है बेसिकली, पर मेरे डेस्कटॉप पर एक एक्सेल का फाइल है, पर यहाँ पर जब हमने सिंपली इंपोर्ट और फाइल्स का हमने ऑप्शन चूज किया तो हमारे पास एक्सेल का डेटा शो नहीं हो रहा। हाउएवर हमारे पास जब एक्सेल का डेटा हो हम उसको कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं? सो वी आर ऑन इट नाउ। By clicking on the import and then going in service, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वी गॉट 4 ऑप्शंस। नंबर 1 इज के एक्सेल, नंबर सेकंड इज टेक्स्ट फाइल जो कि नोटपैड पे भी हो सकती है, या डॉट CSV फाइल, एंड 2 हमारे पास अलग से ऑप्शन हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक्सेल पर क्लिक करके, और आप ये देख सकते हैं, इज इट विजिबल ना, या आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ एक्सेल का डेटा फाइल आ गया। सिंपली हमने यहाँ पर, ठीक है ना, ठीक है, पर मैं सिर्फ यहाँ पर ये बताना चाह रही हूँ कि एक्सेल का फाइल डायरेक्ट जो है वो नहीं इंपोर्ट हो सकता। ठीक है, मैम प्लीज ये थोड़ा सा रिपीट कीजिएगा, ये एक्सेल के फाइल वाला। जी 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 जी, मैं रिपीट कर देती हूँ। मैं यहाँ ये बताना चाह रही हूँ कि यहाँ पर ये देखें, ये मेरा जो है डेस्कटॉप एक फोल्डर बना हुआ है डेटा सेट्स का। ठीक है, डेटा सेट्स में आई हैव दिस एक्सेल फाइल डेटा। प्लीज म्यूट योर माइक। यहाँ पर मेरे पास वर्ड डॉक्यूमेंटेशन के फाइल्स हैं, एंड यहाँ पर मेरे पास PDF का फाइल है, डेटा फाइल। ठीक है, मेरा डेस्कटॉप पर करना क्या है कि जब हम इंपोर्ट और फाइल्स पे क्लिक करेंगे यहाँ पर बाकी फाइल्स तो आ जाएंगी। ठीक है, पर हमारे पास एक्सेल का डेटा शो नहीं हो रहा एन वीवो पे। तो उसके लिए जब हमारे पास एक्सेल की फाइल है या हमारे पास नोटपैड की फाइल्स होती हैं, फॉर एग्जांपल TXT या CSV फाइल्स हमारे पास आती हैं, तो हमारे पास एक अलग से एनवीवो ऑफर करता है हमारे पास ऑप्शन, जो कि सर्विस में जाकर होता है। तो जब हम एक्सेल पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये अलग से एक ऑप्शन आ जाएगा, जो कि एक अलोन बेसिस पर एक्सेल फाइल रखी हुई है हमारे पास, दैट इज AI। बाय क्लिकिंग ऑन द AI फाइल, मैं यहाँ पर आपको शेयर कर देती हूँ पहले चैट बॉक्स में, सो दैट आप भी मेरे साथ यहाँ पर फॉलो करें स्टेप। ये देखें, आप आ गई है आपके पास फाइल, आप इसको डाउनलोड करें। मैं यहाँ पर वेट कर रही हूँ, फिर मैं इसको इंपोर्ट करती हूँ फाइल को, जब तक अजान भी हो जाए। जी, आप इसको इंस्टॉल करो, फाइल को डाउनलोड करो, तो फिर हम आगे फॉरवर्ड करते हैं स्टेप को। यहाँ तक हो जाए तो प्लीज आप मुझे मैसेजेस के थ्रू बताइएगा। एक्सेल फाइल आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप पर भी शेयर की गई है, तो यहाँ तक हो जाए तो आप मुझे बताइएगा, तो हम आगे फिर एक और एक्सपोर्टिंग, सॉरी, इंपोर्टिंग मेथड सीखेंगे फाइल्स का। ओके, पार्टिसिपेंट्स आपने डाउनलोड कर ली है फाइल, तो हम आगे चलें। ठीक है, यहाँ तक आप ना इंपोर्ट करो इस चीज को बाय क्लिकिंग ऑन इंपोर्ट एंड देन सर्विस। तो यहाँ पर ये आप इंपोर्ट करो इस फाइल को, हम आगे चलते हैं। ठीक है, बाकी भी प्लीज मुझे आप रिस्पॉन्ड करें तो इट विल बी
easier for me कि आप लोग साथ साथ हैं मेरे। ओके नादिया, ओके। ठीक है ना, हम आगे चलते हैं अब, ओके। नरगिस आई कैन वेट, अगर देखो डाउनलोड नहीं हो रहे, मुझे आप ओके करो तो मैं आगे चलूँ, सही है यहाँ पर स्टेप का। हम 2 मिनट वेट कर लेते हैं तो ये डाउनलोड हो जाए। टाइम, सॉरी, एक्सेल फाइल। Waiting for the next step. Please go ahead. Please take a sun break. Nargis, can you please? Okay, okay, yes. पढ़ के आओ, नमाज पढ़ के आओ, ठीक है, जाओ। मैं यहाँ पर, हम पॉज करते हैं, हम नमाज ब्रेक लेते हैं, आफ्टर नमाज ब्रेक हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ओके ओके, हो गया। जी जी, जवाब को नमाज पढ़ के आओ, मैं भी पढ़ के आती हूँ को। नो वरीज, नो वरीज, जाओ।
ऑल राइट, सो आई होप सब लोग आ चुके हैं. Shall we Madam, start? on my screen, there is no interviews are showing, only files and classification of files is depending at the side. हम्म. जी, तो मैं वही शो कर रही हूँ. मुझे ये बताओ, है ना हो ना. मुझे ये Madam, बताओ कि Shaheen. शाहीन जी, मुझे Yes, ये madam. बताओ कि कहाँ से कंफ्यूजन हो रही है. बेसिकली मेरे Uh, यहाँ स्क्रीन पर एक एआई फाइल शो हो रही है और बाकी जो एन वीवो का डैशबोर्ड शो हो रहा है. इसके अलावा क्या नहीं समझ आ रहा. मैडम, आपकी स्क्रीन पे ना फाइल्स के नीचे साइड पे इंटरव्यू क्या हुआ है ना. जबकि मैंने अपना जब ओपन कर रही हूँ तो फाइल्स के नीचे क्लासिफिकेशन फाइल तो है, बट इंटरव्यूज वाली टैब शो नहीं हो रही. ओके 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 ओके, या ओके ओके. आई एम गेसिंग कि आपका ये जो है यहाँ से पॉइंट मिस हो गया है. बेसिकली ये मैंने हमारे पास एनवीवो जो है ना वो डिफरेंट एक्सपोर्ट इंपोर्टिंग ऑप्शंस देता है, तो वो मैंने यहाँ पर एक अलग से फोल्डर बनाया हुआ है बेसिकली. ठीक है, ये मैंने खुद ने बनाया हुआ है. हेलो शाहीन, आर यू देयर. यस मैडम. या मैं फोल्डर किस तरह बनाऊं? आप ओके फाइन. यहाँ पर ना आप जाओगी. ठीक है, यहाँ पर आप अपना राइट क्लिक करके और आप अपना इंटरव्यूज का यहाँ पर नेम दोगी. नेम मेंशन करोगी लाइक इंटरव्यूज. मैं दे देती हूँ फॉर एग्जांपल सर्विस कर देती हूँ मैं. ठीक है, सर्विस एंड देन ओके करके हम जब ओके करेंगे तो यहाँ पर ये थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि मेरा एन वीवो स्लो चल रहा है. यहाँ पर देखो एक और अलग से सर्विस का हमारे पास फोल्डर बन गया. ठीक है. मैडम, ये राइट क्लिक मैंने फाइल्स को करना है? जी जी बिल्कुल, राइट क्लिक आपको फाइल्स करना है न्यू फोल्डर पे. तो मैम उसमें आ रही है न्यू फोल्डर, इंपोर्ट फाइल्स, न्यू फोल्डर इंपोर्ट पर जाओ. सर्वे. न्यू फोल्डर पर जाओ. जी, ओके, डन. नेम दो उसको. राइट, इंटरव्यू. इंटरव्यूज का नेम दो. ठीक है. ओके. एंड देन जो है आप अपना डेटा फाइल्स मैंने शेयर किया ना वर्ड डॉक्यूमेंट वाली, जी जी वो डाउनलोड कर ली थी. जी, वो डाउनलोड कर ली. उसको अब इंपोर्ट करना है तो वो कैसे करूं? ठीक है. ओके, सो काइंडली जस्ट रिकैप फ्रॉम स्टार्ट फ्रॉम द डैशबोर्ड्स. ओके ओके, ओके. बिफोर लेट्स ज्वाइन. ठीक है. बेसिकली हमने सो फार क्या किया है कि हमने एक अलग से माय प्रोजेक्ट का हमने फाइल बनाया था, हमने प्रोजेक्ट बनाया था. ठीक है, जिसकी एक्सटेंशन एनवीपी है, बेसिकली एनवीवो. उसके बाद हमने किया क्या था कि फाइल्स पे राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर्स पर जाके हमने एक इंटरव्यूज का हमने फोल्डर बनाया था जो कि ये मेरे पास है फोल्डर. ठीक है, इंटरव्यूज का फोल्डर बन गया था हमारे पास. उसके बाद सिंपली हमने क्या किया था, ये क्या हुआ, नहीं एक मिनट, हाँ. उसके बाद सिंपली हमने किया क्या था कि जो जहाँ पर आपका डेटा फाइल सेव हैं वो हमने टैब खोला था. मेरे पास डेस्कटॉप पर डेटा फाइल सेव हैं, तो हमने सिंपली कंट्रोल करके हमने 3 डॉक्यूमेंट फाइल्स को सिलेक्ट करके हमने सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप किया था. एंड ड्रैग एंड ड्रॉप करके हमने यहाँ पर डेटा फाइल्स इंपोर्ट की थी. सो फार हमने यही किया है अभी तक. दूसरे मेथड पे हम चल रहे थे तो नमाज ब्रेक हो गई थी एंड आई एम होपिंग कि सब अब वापस आ गए हैं. तो आप ये देख सकते हो कि हमारे पास दो दो फाइल्स आ गई हैं बेसिकली. ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड ये है. सेकंड मेथड में मैंने ये कहा था कि यहाँ पर मेरे पास एक एक्सेल की फाइल है, दूसरी एक मेरे पास पीडीएफ फाइल है. 3 हमारे पास मेरे पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट्स की फाइल्स हैं. तो सिंस हमारा दूसरा मेथड जो है जब हम इंपोर्ट और फाइल्स करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हो कि एन वीवो जो है वो एक्सेल की फाइल शो ही नहीं कर रहा. फॉर दिस थिंग मेरे पास जो है एक्सेल की फाइल मैंने यहाँ पर शो सेंड की थी चैट बॉक्स में. आई एम गेसिंग कि सबने वो इंस्टॉल डाउनलोड कर दी है. तो एक्सेल की फाइल के लिए हमारे पास एक ऑप्शन है एनवीवो देता है, इंपोर्ट पर जाकर सर्विस को क्लिक करके एक्सेल, एंड एक्सेल की फाइल हमारे पास आ जाती है. तो हम उसको सिंपली ओपन करेंगे एंड यहाँ पर अब ये एक मिनट, सर्विस एक्सेल, यहाँ पर अब सिंपली ये कहता है कि
वेलकम टू द सर्वे इंपोर्ट विजार्ड। आपके जो रिस्पोंडेंट हो जाएंगे वो केसेस में स्टोर होंगे, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस जो है वो एट्रीब्यूट्स में आपके पास स्टोर्ड होंगे क्रिएटेड, ओपन एंडेड क्वेश्चंस हमारे पास जो है वो कोड में हो जाएंगे। ठीक, हम इस चीज से ठीक हैं, तो हम नेक्स्ट करेंगे। सही, नेक्स्ट करके हम जो है चेक योर डेटा फॉर्मेट। तो जी हमारे पास यही है हमारे पास डेटा। नेक्स्ट करेंगे हम इसको। सही है, नेक्स्ट करने के बाद जो है हमारे पास हम चेंज लोकेशन करेंगे। हम चेंज लोकेशन ना भी करें तो भी ठीक ही है। हम कहाँ स्टोर करना चाहते हैं प्रोजेक्ट अपना, तो ठीक है यहाँ पर केसेस में ही। एंड नेक्स्ट करके हमारे पास ये अब यहाँ पर जो है हमारे पास जी जवाब वही वही मैं अभी करवा रही हूँ। क्या हुआ? ठीक है, यहाँ पर हमारे पास पर पार्टिसिपेंट्स का ये दिखाएगा कि आपके जो ओपन एंडेड क्वेश्चन कौन से होंगे, क्लोज एंडेड क्वेश्चन कौन से होंगे आपके पास, तो ये दिखा रहा है बेसिकली। या ओके नेक्स्ट। तो हम जब नेक्स्ट करेंगे बाय क्लिकिंग ऑन नेक्स्ट, यहाँ पर ऑटो थीम्स वगैरह हो जाएंगे। तो हम इस जो डिफॉल्ट सेटिंग्स बेसिकली बनी हुई हैं फिनिश कोड करके, और ये हमारे पास इंपोर्ट करवा लेगा फाइल को। ठीक है आमना, ठीक है, ये एक फाइल इंपोर्ट हो जाए मैं कर देती हूँ रिपीट। ओके ये हमारे पास एक एक्सेल की फाइल जो है वो इंपोर्ट हो रही है एनवीवो में। ठीक है, हमारे पास ये हो चुकी है। हम सिंपली इसको क्लोज कर देंगे। ना यूल सी हियर कि एआई का हमारे पास कहाँ आया हुआ है। ये रहा हमारे पास एआई का एक्सेल फाइल, ये रही हमारे पास। ये कह रहा है कि प्रिपेयरिंग हायरार्की चार्ट्स फ्रॉम थीम्स। ओके करने दो इसको, बट हमारे पास ये इंपोर्ट हो चुकी है फाइल। ठीक है, तो ये थोड़ा टाइम लेगा यहाँ पर। और मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। सिंपली हमने इंपोर्ट में जाना है। इंपोर्ट पर हमें सर्वेस पर जाना है। सर्वे में हमें वो चार ऑप्शंस देता है एनवीवो। एक्सेल का ऑप्शन देता है, टीएक्सटी फाइल का ऑप्शन देता है, सीएसवी फाइल का ऑप्शन देता है, और दो और ऑप्शंस देता है। तो सिंपली हमने जो है एक्सेल का डेटा इंपोर्ट करने के लिए हमने उसको क्लिक किया, एंड जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स रखी हुई हैं उनको ओके करके, एंड देन हम जो है अपना एक्सेल का फाइल जो है वो इंपोर्ट करवा लेंगे। यहाँ पर हमारे पास एक्सेल का फाइल इंपोर्ट हो चुका है, पर ये देख सकते हैं आप लोग क्या। पर हाउएवर हम इसको फिर से बाद में देखेंगे। ये बेसिकली एडवांस लेवल पर चला जाएगा, पर आज हम बेसिक लेवल पर रख रहे हैं। तो हम इसको कट करके हम सिर्फ एआई फाइल पर रहते हैं। गुड है ना? ठीक है, हमारे पास एक एआई फाइल इंपोर्ट हो चुकी है। ठीक है, ये रही एआई फाइल जो कि एक्सेल की थी बेसिकली। हमने सो फार ये सीखा कि हमारे पास वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल कैसे हमने करनी है इंपोर्ट इन एनवीवो। हमने दूसरी एक्सेल फाइल सीखी। अब हमारे पास एक दूसरी फाइल है जिस जो है पीडीएफ फाइल। सही है, ओके ओके। ओके, वर्ड फाइल कॉपीज डिलीट कर दें प्लीज प्लीज। ओके सिद्रा, मैं कर देती हूँ। पर यहाँ तक मुझे आप लोग सब बताओ कि यहाँ तक क्लियर है? फाइल इंपोर्ट मैम सक्सेसफुली हो गई इंपोर्ट। अब हमारे पास एक ओके ओके क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। ओके प्लीज रिपीट लास्ट स्टेप। फरिया कौन सा लास्ट स्टेप? आपके पास जो भी बेसिकली एक्सेल फाइल का वो डेटा ओपन कर रहा है उस सबको आप क्रॉस कर दो, क्योंकि जो हमारे पास फॉरवर्डेड सेशंस हैं उसमें मैं आपको एडवांस लेवल पर ही लेकर जाऊंगी, तो वहां पर आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो सिंपली आप उसको हटा दो। ठीक है, जस्ट आप इंपोर्टिंग अभी सीखो फाइल की।
ठीक है, वहां पर ऊपर एक छोटा सा क्रॉस का आइकन आ रहा होगा, आप उसको क्लिक करो और वो फाइल्स जो है आपके पास वैसे हट जाएंगी। एक्सक्यूज मी मैम, एक्चुअली मैंने इंपोर्ट तो की हुई हैं फाइल्स, लेकिन वो सामने कोड और रेफरेंसेस शो नहीं हो रहे उसके ना। वो हो जाएंगे, वो थोड़ा टाइम लेगा, उसको क्लिक वगैरह कुछ मत करना, वो हो जाएंगे शो। ठीक है। ठीक है, हाँ जी, उसके बाद क्या करना है ये मुझे नहीं पता अभी ना, वो काइंडली वो मैंने रिपीट। बताया भी नहीं अभी, एक मिनट। ठीक है, ओके। तो हम एक दूसरी फाइल पर जाते हैं, दूसरे बेसिकली इंपोर्टिंग मेथड की तरफ जाते हैं, जो कि है पीडीएफ फाइल को हमने इंपोर्ट करना है। हमारे पास एक क्राइम का एक डेटा रखा हुआ है, इसको सिंपली आपने बस क्लिक करके, अच्छा आपके पास अगर मल्टीपल है तो आप उसको कंट्रोल का बटन दबा के, या कंट्रोल का बटन दबा के एंड आप जो है उसे कर सकते हो इंपोर्ट। तो यहाँ पर ये ब्राउज कहेगा, यस इंपोर्ट का सिंपली एक ये भी ऑप्शन है, और ये इंपोर्ट की तरफ ले जाएगा हमें। तो नेम, यस ठीक है, क्राइम ही ठीक है, एंड ओके करके हमारे पास एक क्राइम का एक डेटा आ जाएगा। कैन यू सेंड पीडीएफ फाइल, ओके श्योर, मैं यहाँ चैट में सेंड कर देती हूँ, यहाँ पर आप एक डाउनलोड कर लो। ओके, एक्सेल फाइल, ओके हो गई, हो गई या नहीं हुई ना, नहीं हुई, अब हो गई देखो सब। हो गई है ना, या ओके ओके, इसको इसको आप लोग डाउनलोड करो, और जिस तरह अभी मैंने सिखाया है, आई कैन रिपीट दिस थिंग टू, जस्ट सिंपली फाइल्स पर जाओ और यहाँ पर आपको पीडीएफ फाइल नजर आ जाएगी, एंड बाय क्लिकिंग ऑन दिस थिंग और आप जो है इसको इंपोर्ट कर लो। ठीक है, ओपन करके इंपोर्ट हो जाएगी। एक्सक्यूज मी मैम, हैना हेयर। मैम ये स्टेप क्लियर नहीं हुआ कि मैं ये पीडीएफ फाइल कैसे इंपोर्ट करूंगी। ओके ठीक है, आप ना सिंपली इंपोर्ट पर जाओ, ठीक है, उसमें फाइल्स में जाओ, एंड आपकी जहाँ फाइल्स रखी हुई है बेसिकली वो डाउनलोड फोल्डर में ही गई होंगी। तो डाउनलोड फोल्डर पर आपको ये पीडीएफ फाइल क्राइम के नाम से आपको नजर आ रहा होगा, तो आप सिंपली उसको क्राइम में जा क्लिक करके पीडीएफ फाइल को, ठीक है यहाँ तक है ना। है ना, आर यू विथ मी, और सिंपली आप ओपन कर दो Yes, इसको। ma'am. I'm with you, but I'm just following your instructions. It's important. हो ओके गई। ओके, या जस्ट सिंपली आप इसको है ना ओपन करके और सिंपली आप इंपोर्ट पर इसको क्लिक करो, तो ये आ जाएंगी, आपका इंपोर्ट फाइल हो जाएगी पीडीएफ। यस हो गया मैम, थैंक यू। ओके ओके ओके, तो सो फार, अच्छा लेट मी फर्स्ट डिलीट दीज रिपीटेटिव फाइल्स, एक मिनट, ये इनको मैं डिलीट कर दूं क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है हमारे पास। अच्छा, एक सिद्रा का क्वेश्चन है कि कैन वी ऑल्सो ड्रैग एंड ड्रॉप फाइल्स फ्रॉम एक्सेल एंड पीडीएफ फाइल्स। ठीक है, हम अभी देख लेते हैं इसको। ये देखो, इंपोर्ट फाइल्स का हमें वैसे ये ऑप्शन दे रहा है, ठीक है, हम यहाँ से हम जब फाइल्स को क्लिक करेंगे, सॉरी इंटरव्यूज फोल्डर्स को क्लिक करेंगे, तो हमें ये वैसे ही ऑप्शन दे रहा है, सही है। तो हम यहाँ पर एक्सेल का अगेन हम नहीं कर सकते, एक्सेल का हमारे पास दूसरा वो ऑप्शन देता है, बट फॉर पीडीएफ एंड फॉर वर्ड डॉक्स हम यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू द एक्सेल फाइल, तो हम इंपोर्ट सर्वे पे क्लिक करके हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का ये ऑप्शन ऑलरेडी दे रहा है, हम यहाँ पर क्लिक करके हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। बट यहाँ पर मैंने डिफरेंट मेथड्स इस वजह से बताए हैं कि स्टूडेंट्स को जो है ना, रिसर्चर्स को डिफरेंट डिफरेंट मेथड समझ आते हैं और डिफरेंट मेथड इजी भी लगते हैं। तो ये दो तीन
एन वीवो हमें ऑफर करता है इंपोर्टिंग के ऑप्शंस। तो ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं हमारे पास एन वीवो का फाइल इंपोर्टिंग के। एक्सक्यूज मी मैडम, टाइम वाली पीडीएफ जी क्या प्लीज, कौन मुझसे बात कर रहा है? थोड़ा जोर से बात करें। एक्सक्यूज मी मैडम, जो टाइम वाली जी जी फाइल शाहीन। नहीं आ रही। शाहीन शाहीन आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा। आ, शाहीन कैन यू राइट आप अपनी क्यूरी जो है, my codes are 9 and refer for 40 for Excel imported by and but you are changed by your changed by। शबाना देखो अभी ना उन वो जो है ना नेक्स्ट हमारे कल के सेशन के लिए है बेसिकली ये। तो डोंट वरी अबाउट दिस थिंग। मुझे जस्ट आप लोग सब पार्टिसिपेंट्स अभी यहाँ पर ये बताओ कि आपने इंपोर्टिंग फाइल सीख ली है, बाकी तो वो हम बाद में देख लेंगे। क्योंकि यहाँ पर जो है ना यहाँ पर एआई में जो मेरा एक्सेल का फोल्डर है बेसिकली, वहां पर दूसरे जो एडवांस आपने अगर वो चीज नोट की हुई हो तो एडवांस विजुअलाइजेशन भी शो हो रही थी ना। तो उसकी वजह से अनेबल टू इंपोर्ट एक्सेल फाइल। शाइस्ता, शाइस्ता क्यों 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 क्यों? मैडम मैं मेरी क्राइम वाली फाइल जो है इंपोर्ट नहीं हो रही। पीडीएफ वाली फाइल ना? जी पीडीएफ वाली। लर्न टू इंपोर्ट फाइल वर्ड एंड पीडीएफ, दैट्स ग्रेट है ना। शाइस्ता ये देखो पहले आप ना इंपोर्ट पर जाओ और सर्विस में जाओ। सर्विस में एक्सेल का आपके पास ऑप्शन आता है तो आप वहां से इंपोर्ट कर सकते हो और बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स जो है आप वहाँ जो है कंटिन्यू कर सकते हो। और मुझे अभी किसने, शाहीन, शाहीन ने क्वेश्चन किया था कि पीडीएफ फाइल करेक्ट। पीडीएफ फाइल ठीक है। शाहीन ये देखो यहाँ पर आप इंपोर्ट यस मैडम। इंपोर्ट फाइल्स एंड यहाँ पर क्राइम वाली आपकी फाइल्स मेरे ख्याल से डाउनलोडेड में आपकी रखी होगी। वहां पर सिंपली आप इसको ओपन करोगी फाइल को। ओके ओके। ठीक है, और आप यहाँ पर इंपोर्ट का ऑप्शन ये दे रहा है एनवीवो। ठीक है, यहाँ पर ये थोड़ा टाइम देगा और यहाँ ओके वी पर हैव टू ओपन द फाइल फर्स्ट। वहां पर ना 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 ना, एक मिनट फिर से देखो, फाइल्स, क्राइम, क्लिक ऑन ओपन। यहाँ तक ठीक है? राइट मैम। ठीक है, यहाँ पर फिर यहाँ पर ये इंपोर्ट, यहाँ पर थोड़ा टाइम लेगा। ओके कर दो इस सारी डिफॉल्ट सेटिंग्स को। आ जाएगा, सही है, हो गया। यस मैडम थैंक यू। नो वरीज नो वरीज। यहाँ पर सबकी अगर आपकी फाइल्स इंपोर्ट हो चुकी हैं तो हम अब आगे चलें मेमोज एंड एनोटेशंस पर। सही है, मुझे आप लोग प्लीज बताओ तो हम आगे चलें। मैम व्हाट इज मेमोज एंड एडिशंस? मैं उसी पर आ रही हूँ बच्चा। ओके, हम अब चलते हैं मेमोज एंड एनोटेशंस पर। ठीक है, अब ये रहे हमारा मेमोज नोट्स। ठीक है, अब मेमोज को आप ऐसे समझो सिंपल वर्डिंग में कि मेमोज आपके एक पर्सनल डिजिटल डायरी होता है। ठीक है, जब हम एग्जाम्स के लिए अपना लेक्चर नोट करते हैं तो साइड में हम छोटे से नोट्स बनाते हैं। ठीक है, नोट्स बनाते हैं हम साइड में। वो इस वजह से होते हैं कि लेटर ऑन जब हम एग्जाम की प्रिपरेशन करें तो वो हमें याद रहे कि हाँ ये इस वजह से था और हमने इस वजह से इस लेक्चर को नोट किया, इस लाइन को नोट किया। So basically, memos are your personal digital diary inside NVivo for ideas and interpretations. Likewise, similarly, annotations जो होते हैं ना, ये रहे annotations जो होते हैं ना, basically NVivo में आपके शॉर्ट नोट्स होते हैं या कमेंट्स होते हैं। लाइक वो सिर्फ एक स्पेसिफिक पार्ट ऑफ डेटा पे अटैच होते हैं। मैं आपको करके दिखाती हूँ, ठीक है।
पहले हम मेमो सीखते हैं। हम अली की फाइल खोल देते हैं, ओपन कर लेते हैं। In simple words, basically, annotations are your brief interpretation और reminder. और मेमोज जो है आपकी पर्सनल डायरी पे आते हैं। पर मैं आपको यहाँ पर करके दिखाती हूँ। ठीक है, हमारे पास ये अली का इंटरव्यू है। अली जो है एक मिड लेवल एचआर ऑफिसर है, जो कि 28 ईयर्स का है हमारे पास, और रोल उसका है एचआर ऑफिसर पर रिक्रूटमेंट। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कैन यू टेल मी अबाउट योर रोल। तो अली कहता है कि आई वर्क इन एचआर रिक्रूटमेंट। माई मेन वर्क इज शॉर्ट लिस्टिंग सीवीज एंड अरेंजिंग इंटरव्यूज। सही है। अब हम इसे मेमो लिंक करते हैं। बेसिकली इतने को ही हम लेट्स फोर से हम इतना ही एक पोर्शन मेमो लिंक करते हैं। बेसिकली मैं आपको मेमोज एंड एनोटेशन सिखा रही हूँ। मेमोज है हमारी पर्सनल डायरी फॉर द लेटर यूजेज ना। तो यहाँ पर हमारे पास मेमो लिंक आ रहा होगा, ऑप्शन नहीं आ रहा हमारे पास। ये रहे ना लिंक्स एंड मेमो। क्यों नहीं आ रहा मेमो लिंक, क्यों हमारे पास ओपन नहीं हो रहा। लेट मी न्यू फोल्डर। अली का इंटरव्यू हम कर रहे हैं। क्यों नहीं आ रहा। दरवाजा खोलो, जल्दी सुनो, क्या बातें हो रही हैं। ठीक है। मैडम ये ऊपर लिंक्स का जो ऑप्शन साइट की वजह सामने जो आ रहा है ऊपर, उससे मेमो लिंक हो रहा है। कहाँ पे? कोड सिलेक्शन पे? ऊपर ये जी कोड सिलेक्शन के साथ जो लिंक्स है। कहाँ पे? मैम आगे मैं पहले आए ना, फोर्थ ऑप्शन कोड सिलेक्शन के बाद। कोड सिलेक्शन चाहिए। राइट क्लिक नहीं करें, राइट क्लिक नहीं करें। ओके, यहाँ पे कह रही हो? जी 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 जी। हाँ, लिंक टू न्यू मेमो। हाँ ठीक है, ओके। पर वो तो अगेन फोल्डर ही बना देगा, जो कि मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है फोल्डर। आई गेस ये यहाँ पर। एक मिनट, लोड हो रहा है। हाँ ना, देखो न्यू फोल्डर बना रहा है। ओके, बेसिकली हम करते क्या है मेमो, हम इस हिसाब से करते हैं कि यहाँ पर हमने फॉर एग्जांपल एक चीज को कोड कर रखा है। कोड एंड थीम्स बेसिकली मैं आपको कल समझाऊंगी। बट हाउ एवर हम मेमोज जो है इसी वजह से यूज करते हैं कि हमारे पास ये पर्सनल डायरी होता है। हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल इंटरव्यूज, हमने अली का जो इंटरव्यू है, इंटरव्यू ऑफ अली, और एचआर वर्कर है वो, या एचआर एम्प्लॉयर है वो, एम्प्लॉय है वो। ये हमारे पास हो गया मेमो। जब हम एनोटेशन की बात करते हैं, अली का इंटरव्यू सिलेक्ट हो, जब हम एनोटेशन की बात करते हैं तो हमारे पास आइदर कोई सा भी डॉक्यूमेंट हो, तो वो वहां पर एक कमेंट छोटा सा आपको आइकन दिखेगा, और यहाँ पर ये हाईलाइट भी कर देगा कि हाँ, इस पॉइंट पर आपने इस वजह से इसको कोड किया था। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि, एक मिनट मैं इसको सही से करूं।
लोडिंग हो रहा है। डिलीट एनोटेशन करके और अली वर्क इन HR रिक्रूटमेंट में इसका है वर्क CV शॉर्ट लिस्टिंग और अरेंजिंग इंटरव्यूज। ठीक है, तो हम इसका एनोटेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे आप लोग थोड़ा सजेस्ट करो कि कौन सा हम इसको नोट दे सकते हैं। सो फॉर दिस थिंग हम जो है ठीक है अमर या पल वर्षा मैम काइंडली एक्सेल फाइल को इंपोर्ट करने का तरीका रिपीट करें। हम्म अली ठीक है, अनवर ठीक है, इस तरह भी या अली जॉब डिस्क्रिप्शन। पल वर्षा मैं कर देती हूँ। आमना क्लिक सर्वे देन एक्सेल फाइल देन डाउनलोड फ्रॉम या ओके अली डिस्क्रिप्शन। जब हम एक ये नोट बना लेंगे, ठीक है, एक मिनट इसका एडिट मोड हम हटाएं। तो यहाँ पर आप लोग देखें एक कमेंट सा शो हो रहा है एंड कमेंट यहाँ पर ले आएगा आपको एनोटेशन पर कि हमने ये अली की जॉब डिस्क्रिप्शन लिखी है। हम ऐसे ही एक और करके देखते हैं। डज योर ऑर्गेनाइजेशन यूज AI इन HR? सो हम ये यूजेज ऑफ AI का हम कर सकते हैं या हम बेनिफिट्स का भी कर सकते हैं। एनोटेशन हम एक और बनाते हैं। जी यूटिलिटी ऑफ AI। जी जी, वो एक अनम्यूट हो गया था माइक, तो मैं वो सुन रही थी कि उसको कोई क्वेश्चन तो नहीं है उनको। जी जी, यूटिलिटी ऑफ AI या हम यूसेज ऑफ AI भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर इसको हाईलाइट डज योर ऑर्गेनाइजेशन यूज AI इन HR? तो अली कहता है कि यस हमारे पास AI यूज होती है। न्यू एनोटेशन, सेकंड एनोटेशन यूसेज ऑफ AI कर सकते हैं हम। मैम मेरा एक क्वेश्चन है कि हमें हर क्वेश्चन के लिए न्यू मेमो क्रिएट करना है और न्यू एनोटेशन क्रिएट करनी है। बेसिकली इट इज नॉट नेसेसरली कि आप हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग करो, क्योंकि इट इज ऑल्सो रियली वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस। आप अगर किसी के बारे में सॉरी, आप अगर किसी के एनोटेशन से मेमोज ना भी क्रिएट करो, दैट विल ऑल्सो लाइक वर्क फॉर यू। दे आर बेसिकली आपको एंड भी वो एक अदर एक एक्स्ट्रा ऑप्शन ये देता है कि आपके पास पर्सनल डायरी हो, सो दैट आप भूले नहीं कि हमने ये क्यों तो किया था, इसको कोड हमने इसको किस वजह से किया था। ठीक है, मेरे बताने का यहाँ मकसद ये है कि आपको फुल एक पिक्चर दी जाए कि एन वीवो वर्क कैसे करता है। वरना इस सब की अगर तो चाहो तो यूज कर सकते हो, अगर ना चाहो तो ना यूज करो। वो तो अगर आपको ये हाँ चलें जी, ठीक है, वो क्लियर हो गया। तो क्या ये जब हम कोड्स और थीम्स अपने डेवलप करेंगे, वो मतलब एन वीवो डेवलप हमें करके देगा, तो क्या ये हमारे मेमोज और एनोटेशन इंटरफेयर करते हैं उस कोड्स और थीम्स में, ना कि ना ये ना, सिर्फ हमारे पर्सनल यूजेज के लिए एज अ डायरी? ये हमारे पर्सनल यूसेज के लिए एज अ डायरी एंड मोर ओवर ये आपको इंटरप्रिटेशन में भी काफी ज्यादा हेल्प करते हैं। जब आप अपना रिसर्च पेपर लिखते हो ना, तो उसके लिए भी काफी ज्यादा यूज करते हैं। एंड नरगिस ठीक है, स्ट्रेंथ करता है क्रेडिबिलिटी आपकी स्टडी को, बट आप जब रिसर्च पेपर लिखते हो या रिसर्च आर्टिकल लिखते हो तो आपका उसमें अपना इंसाइट ज्यादा जरूरी होता है। और एनोटेशंस एंड मेमोज आर जस्ट एज योर पर्सनल डायरी, आपको याद रखने के लिए कि हमने इस वजह से इसको किया है। नो थैंक या यू। एग्जैक्टली उमर, बिल्कुल। और दूसरी मैं ये बात कह रही थी कि
कल का जो सेशन है वो बेसिकली थीम्स एंड कोड्स पर ही है, तो हम किस तरह से बना सकते हैं। तो मैं आपको जब बनाना सिखाऊंगी ना थीम्स एंड कोड्स, तो वो बिल्कुल मर्ज हो जाते हैं अगेन। आप एक एक, अच्छा मैं ज्यादा कंफ्यूज नहीं करती आपको, पर मैं आपको ये सिर्फ आइडिया देती हूँ कि जब हम सब थीम्स बनाते हैं ना, तो हम एक ही उसकी कैटेगरी में, फॉर एग्जांपल हमने यूजेज ऑफ एआई का हमने फॉर एग्जांपल एक थीम बनाया है, तो यूजेज ऑफ एआई का डिफरेंट लोगों ने यूजेज ऑफ एआई पे बात की होगी, डिफरेंट बार, वेरियस बार हम उन लोगों ने इंटरव्यूज ने बात की होगी यूजेज ऑफ एआई पे। तो समटाइम्स रिसर्चर्स जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि या इसने इसने भी ये बात की हुई यूजेज ऑफ एआई पे, अली ने भी बात की हुई है, सारा ने भी बात की हुई है, हसन ने भी बात की हुई है, क्राइम वाले डॉक्यूमेंट में भी यूजेज ऑफ एआई की बात थी, तो हमने क्यों तो किया। तो यहाँ पर हम सिर्फ एक डॉक्यूमेंट के को देख रहे हैं कि यूज कैसे होता है, बट व्हेन वी हैव ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, तो हम वहाँ पर रिसर्चर्स जो हैं कंफ्यूज हो जाते हैं। तो दिस इज वेयर एंड मेमोज एंड एनोटेशंस प्लेज देयर रोल। ठीक हो गया यहाँ पर, सही। ऑल राइट, सो हम अब यहाँ पर जो है, क्योंकि साथ होने लगे हैं, तो हम अब यहाँ पर अपना जो सेशन है वो कॉल ऑफ करते हैं। एंड एक्सीलेंट वर्क टुडे लाइक एवरीवन, एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी पार्टिसिपेंट्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्टिव रहे। सो बेसिकली मैं रिकैप कर दूं, टुडे वाज अबाउट बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, प्रिपेयरिंग बोथ your project and your analytical mindset and how NVO work. ठीक। So tomorrow we'll move into the heart of qualitative analysis, that is known as coding and thematic development. If you have any confusion, तो before आप मुझे जो है feel free to ask. ठीक है। हाँ मैम, थैंक यू सो मच। अभी हमें फाइल्स इंपोर्ट करने तक तो बहुत अच्छी समझ आई है और हमने एनवीवो इंस्टॉल भी कर लिया है, ये की भी एक पॉजिटिव चीज़ है। ठीक है। तो इंशाल्लाह कल जो है ना हम कोशिश यही करेंगे कि इंशाल्लाह हमें ना कोड जनरेट करना, थीमेटिक एनालिसिस के लिए पहले पूरा ग्राउंड तैयार करना, ये हो जाए, ये अच्छी चीज़ होगी। ठीक है जी, ठीक है जी, नोटेड। एंड मैं ये चाह रही हूँ कि जो मेमोस एंड एनोटेशंस का है ना, मैं ये समझ सकती हूँ कि अभी ये इतना यूजफुल क्यों नहीं लग रहा, पर टुमारो हम जब कोडिंग एंड थीमेटिक एनालिसिस पर जाएंगे ना, तो हम तब इसको ले आएंगे वापस काम में। तो नो वरीज, अगर आपको मेमोस एंड एनोटेशंस का इतना क्लियर नहीं हुआ, हम कल फिर से इसको रिपीट कर देंगे सो दैट कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, बिकॉज कल हम मल्टीपल फाइल्स पर काम करेंगे। तो यस, एंड आई एम होपिंग कि ये जो इंटरफेस मैंने आप लोगों को समझाया, लाइक दिस वर्टिकल बॉक्स, टूल बॉक्स, एंड देन ये हमारे पास कमांड सेंटर है, एंड ये हमारे पास डिफरेंट आते हैं केसेस, एंड जो हम सब कल इसको एक्सप्लोर करेंगे। ठीक हो गया। और मैम और काइंडली आप कल के सेशन से पहले ये आज की रिकॉर्डिंग शेयर कर लें, ताकि वो बाकी जो क्वेश्चंस फाइल में है आपने जो हमारे साथ शेयर किए हैं, हम उसके मेमो या एनोटेशंस बना के रख लें। ठीक है। अब क्योंकि अभी तो बहुत फ्रेशली याद है कि अच्छा यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, लेकिन अगर कुछ टाइम बाद काम करने बैठेंगे तो वो स्किप कर नो जाएगा। वरीज, नो वरीज, मेरी टीम जो है चलिए, आपको थैंक शेयर यू। कर देगी वीडियो। एंड कल जो है मैं ये भी करूंगी कि बिफोर स्टार्टिंग द डे 2 ऑब्जेक्टिव्स, हम फर्स्ट ये कर लेंगे कि लाइक रिकैप कर लेंगे सारे कुछ को इस तरह। ठीक है। जी मैम, बिल्कुल यस मैम, ठीक ये है। बहुत हेल्पफुल हो बस जाएगा। बस और ठीक है मैम जो मतलब। जो जी जी। फाइल्स कल आपने ना ड्यूरिंग द सेशन भेजनी हो ना, जिन्हें हमें इंस्टॉल करना पड़े या इस तरह से, कोशिश हम्म। कीजिएगा ग्रुप के अंदर वो ऑलरेडी पहले से सेंड कर दीजिएगा, ताकि हम उन्हें अपने सिस्टम के अंदर वो डाउनलोड कर लें पहले से, ताकि ठीक यहाँ है। इंपोर्ट करना आसान हो अच्छा, उसको। जो जो फाइल्स अभी तक मैंने शेयर की है, 3 वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल है हमारे पास, आपको मैंने सेंड किया, एक पीडीएफ फाइल है, एक एक्सेल फाइल है, तो आप लोग वही सेव करके रखो, हम इन्हीं पर वर्क करेंगे। ठीक है। चलो ठीक है, ठीक हो गया मैम। ओके ओके। थैंक यू ठीक। सो मच मैम। थैंक यू, Miss थैंक Sahar, यू। Assalamu alaikum. I just have one request. सलाम जी। काइंडली सेम हेयर, ये अभी किसी ने और भी रिक्वेस्ट की है कि जो कोई हमने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना हो, कोई फाइल इंस्टॉल करनी हो, वो काइंडली आप ग्रुप में पहले ही शेयर कर दिया कीजिए, बिकॉज आज भी मुझे ये इंस्टॉलेशन में काफ़ी टाइम लग गया, सो आई कुड नॉट
कैच यू अप। सो आई थिंक मैं इसको बाद में वाइंड अप कर लूंगी। आई विल ट्राई माई बेस्ट। सो काइंडली जो भी कोई इंस्टॉलेशन या किसी किस्म का कोई डाउनलोडिंग हो वो पहले कर दिया करें, सो दैट हमारे पास वर्क हैंड्स ऑन मटेरियल हो, तो हम आपकी पेस के साथ साथ चल सकें। अच्छा, कैन थैंक यू यू सो प्लीज मच। टेल मी योर नेम? आई एम शाइस्ता गजनफर। शाइस्ता, आप ग्रुप में ऐड हो जो भी व्हाट्सएप चैनल्स या जो जी जी दूसरे जी, वो ग्रुप में मैं ऐड हूँ। मैंने एक्चुअली वो ग्रुप जो आपने व्हाट्सएप ग्रुप कहा था ना कल ज्वाइन करने के लिए, शायद मैंने वो थोड़ा लेट ज्वाइन किया, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया मुझे। नो वरीज नो वरीज, मैं फिर से जो है वो लिंक। अच्छा, हुआ ये है कि ना हाँ, मैंने कर लिया। एन वीवो वेबिनार जो था हमारा, तो जी जी, उससे पहले ही आई अटेंडेड दैट। आई उससे अटेंडेड। जी 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 जी, उससे पहले ही ना लिंक वगैरह शेयर हो चुकी थी, क्योंकि मैं खुद भी एज एन ट्रेनर हूँ, तो मतलब मुझे अंदाजा है कि बच्चों को वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी हो जाती है कि मतलब अभी सब कुछ इंस्टॉल करना है। तो वो पहले ही जो है ना, लिंक तो मैंने पहले ही शेयर कर दी थी इंस्टॉलेशन की। बाकी मैं खुद भी ये ट्राई करूंगी कि जो फाइल्स हैं तो मैं जूम पर ना करूं, तो मैं वो जो है पहले ही डाउनलोड कर दूं। बट जो अभी तक फाइल्स डाउनलोडेड मैंने सेंड की हैं वो व्हाट्सएप चैनल पे हैं, ठीक है? और वो आप लोग डाउनलोड कर लो, उसी पे वर्क करेंगे हम, ठीक है? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मिस सहल। No worries, yeah. Okay, so thank you for your like active participations and look forward to seeing you tomorrow. Till then, take care. Allah Hafiz. Thank you so much, ma'am. It was Thank you really, so really much, ma'am. Thank you Allah very much. Hafiz. Allah Take Hafiz, detailed for care. ma'am. me. Okay, guys, थैंक यू सो before मच we मैम, take शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। all right, guys, once before we conclude today's session, I would like to request you, please, one thing that please, when you join the session, join it with your name. And दूसरी बात ये कि is some of people said कि चीज़ें शेयर नहीं हुई थी, या that वो नहीं हुई थी because we had a lot of participants and we shared, with you the email, and we also invited you to join group on WhatsApp as well. But क्योंकि a lot of students were had not joined the group, तो इसलिए फिर हमने सोचा कि बार बार उसको चीज़ों को भेजने से बेटर है कि हम एक ही बार भेजें जब सारे ज्वाइन कर रहे हैं. बट अनफॉर्चुनेटली our participants weren't able to join it in time. So since now we all have joined the groups, तो हमारे पास जो भी डेटा होगा, लाइक ब्राउन एंड क्लार्क की जो थीमेटिक एनालिसिस की आर्टिकल है, रिसर्च मेथड है, तो वो भी मैं आपके जी साथ जी। इंशाल्लाह शेयर कर रहा हूँ. सो डोंट वरी अबाउट इट. ओके गाइस. Thank you, sir. Thank you so much for being so active, थैंक्स and you people have been wonderful audience. I really, really enjoyed today's session, and ma'am, thank you so much for explaining each and everything like you do it to 5th grade students. So it was very, very helpful for me as well. Thank you, ma'am. Thank you. Welcome. Yeah. All right, so let's call it night. और कल इंशाल्लाह मिलते हैं. Please try to join 10 minutes earlier, ताकि फिर हम 5 बजे डॉट शुरू कर सकें. Thank you. सर्जरी में उठाई उसी बार उतर लगा खड़े All भाईजान, right, sir. और मोबाइल चार्ज किया नहीं।